regional area. So that this is the first intention to our, and also Purva say to about it's a very difficult to the thinking and speaking ability. So it is every time it's a difficult, because some peoples are the thinking in the another language and speaking in the another language, and that time very difficult to the judge our feelings and needs. It's a difficult, and when judging and feelings needs, so it's a really very consciousness energy is needing, and that time in this complex in these programs we are not fully expressed and fully present in needs and feelings. So that time we are thinking about, if we are trying to speak in our own growing language, that means if I am growing in Marathi language, that's Marathi is local language in Maharashtra. So it's a very difficult, it's a very easy to catch my feelings and my needs. So therefore we are trying to the last two रीना जी, अपन ने कब शुरू किया था, आपको तारीख याद है? हाँ, yes, sorry, in Reena ji is 15th. not on the call, sir. Okay. So thank you, Purvaji. In 15 August 2019, sir, and in the Independence Day for in India, and that times we are try to start up our the Marathi practice groups. And in this practice group, there people is very easily connected to our needs and feelings. So it's a really near to the intentions for the NVC intentions to the global intentions, and we all are the intentionally mostly in uh, social change and educations. So it's easy to me. I think Purvaji, you can say something, some questions, because I'm just connected. So can you also say to me, how can I teach you? Father Chris, so it is preparation, sir. And in these preparations, in Marathi language, we are develop some resources, sir. Not permanently, but in writing skills or in just card sheet, and we are the spreading NVC in Marathi language. Second things, in colleges, uh, sorry. In colleges, most of the youth are depressed to the careers and also depressed to the family depressions. So that time we are also thinking this two intentionally. We are offering the NVC in some schools and some colleges. One of the institute in Nehru Yuva Kendra and some colleges. So that times also the Gandhi Philosophy Centers, Ambedkar Rights movements. In this all local movements, we are spreading NVC in directly also. Suddenly in last month, we are also live practice, a live workshop in Malegaon. So all are the we are practicing just. We don't know how to get more and more, but first intention will spreading NVC in a local language, and after that the 1 year completing. So that times we thinking about that. So how to move away in the next steps. So that times we are decided in the one meetings, and we are decided to go ahead in directly in NVC process, because when we are going through the NVC process, so we are directly living NVC. So we all are the decided, and we go through the in that the CPP process, and Reena is also support to all construction or recognize or organizing the all groups, and we are the 12 peoples, but right now. Uh, Kirtit, Nine. right now 9 people are in here, sir. So it is a preparations, and it is the backgrounds of these NVC groups. One of the also very good experience about the people, sir, because the peoples are the very frustrating, and we are thinking about the NVC consciousness spread to the top to bottoms, but mostly spreading NVC in only top levels, not in bottoms.
because I don't know, but more many reasons. So we are focusing to the bottom levels, that whose peoples they are not offering the NVC's learning by money. So we are offering to the free workshops or the free trainings. So these are our intentions, because NVC is the all peoples, not only whose people they paid money. So it's a little bit background, sir. Thank you. Thank you, Rajesh. That's nice to hear, just to hear your history and your walk. Your journey is very encouraging, and it's very, very enlightening too, because I think the more that you start, the intention of living it brings you a completely new dimension. It takes you out of all these trainings and teaching and reading and learning and all that. You get out of that whole system, you see. And so just the intention of living the process, which really takes you out of it, because then it brings you to really to the NVC, which is sometimes is missed by a lot of people trying to learn, trying to practice, trying to do this and that, because trying is something that you should never try to do that, you see. So we always try to learn, try to practice, try to live and all that. You see, because when you put the word trying, you take away part of that energy, because your full presence is slowly missed. Because when you put the word trying, there is already doubt, there is already a goal and this and that, you see. There are lots of distractions come in, and therefore it takes you away being fully present, fully committed to the process. So that way, just the intention of living NVC makes a big difference. And I'm sure you all will realize that. So nice to hear your own stories. I'm sure you will have very interesting, your own history of how each one of us tried to learn it. Chris, shall we pause and let's translate what both of you said? Yes, yeah? Okay. Yes. So Rajesh, तुम्ही या हंसराज तुम्ही करा ना, सांगा ना सगळ्यांना. हंसराज तुम्ही रीना जी, तो हंसराज को क्या बताना है ये उसे बताओ. हाँ. हंसराज, पहले तो राजेश ने अपने ग्रुप का इतिहास बताया कि हमने कैसे शुरुआत की, हमारा इरादा क्या है ना. तो हमारा इरादा ये है कि हम जीना चाहते हैं, एनवीसी जी कर हम उसका पाचन करना चाहते हैं, है ना. तो ये बताया, और फिर इसका रिस्पॉन्स फादर क्रिस ने जो दिया, हंसराज, वो अगर आप जो भी आपने सुना दोनों का, और फादर क्रिस का खास करके रिस्पॉन्स के ट्राइंग का क्या होता है, उससे क्या दिक्कत आती है, वो अगर आप मराठी में दोनों बताएंगे, फिर कुछ हम ऐड करना होगा या कुछ होगा तो हम में से कोई भी कर सकता है ना. तो रीना जी, कैन यू रिक्वेस्ट टू द पूर्वा? नहीं, हंसराज को पहले सुनते हैं. और I'll add, not to worry so much and not to be pressurized. हंसराज सर, तुम्ही एकदम आरामात घ्या, काही सुटलं तर आपण सगळे मिळून घालू त्याच्यात. नाही, म्हणजे मला पण तीच रिक्वेस्ट करायची की ट्रान्सलेट तुम्ही केले तर बरं राहील. सुंदर, मी करते. मी पण माझे मुद्दे सुटले तर तुम्ही थोडीशी भरपाई करा. राजेश सरांनी सांगितलं की काही वर्ष आम्ही रीनाजींच्या बरोबर 15 ऑगस्ट, पण साल मला लक्षात नाही, सुरुवात केली लास्ट इयर. आणि असं लक्षात आलं की शाळा नंतर बाकीच्या ऑफिसमध्ये पण मला वाटतं तुम्ही घेता क्लासेस आम्ही घेत आहोत.
आणि स्पेशली कॉलेजेसमध्ये थोडासा डिप्रेशनचे हे बघितलं. करेक्ट ना राजेश सर? येस येस येस. शिक्षणासंबंधी आणि घरात पण थोडेसे वाद विवाद होऊन जे एनव्हीसी आम्हाला करता आलं तो आम्ही त्यांच्याकडे एनव्हीसी घेऊन गेलो त्यांच्याकडे. बरोबर ना राजेश सर? येस. आणि रीनाजींची मदत वारंवार आम्हाला मिळालेली आहे आणि हो, ते. तशीच मिळत आहे. म्हणून त्यांनी सीपीपी आमच्या समोर सादर केलेला आहे. राजेश सर? येस. बरोबर? पूर्वाजी. येस 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 येस. आणि काही नाही, तेवढंच. म्हणजे माझ्या प्रास्ताविकाच्या संदर्भातल्या काही गोष्टी आपल्या ग्रुपला स्पष्ट आहेत. हा. ग्रुपला हे जाणून घ्यायला आवडेल की फादर ख्रिस्तांनी हा. काय रिस्पॉन्स दिला. या तो जास्ती महत्वाचा आहे. बरोबर आहे. फादर क्रिस असं म्हणाले की मला असं लक्षात येते तुमची हिस्ट्री बघून ऐकून की तुम्ही प्रयत्नशील नाही आहात, तुम्ही लिव्हिंग करता एनव्हीसी. प्रयत्न जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपला प्रेझेन्स थोडा खालावरतो. 100% प्रेझेन्ससाठी प्रयत्न नाही होता कामा. आपल्याला ते एनव्हीसी जगायला पाहिजे. लिव्हिंग एनव्हीसी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट असं फादरनी सांगितलं आणि त्याचं कौतुक केलं सगळ्यांचंच की तुम्ही हे करताय हे अगदी कौतुकास्पद आहे. करेक्ट राजेश सर? येस. आणि असं म्हणाले की कमिटमेंट पण कमी होते आपली अगर आपण प्रयत्नात राहिलो तर प्रयत्न मला दिसत नाहीयेत. यू आर ऑल लिव्हिंग एनव्हीसी. म्हणजे तुम्ही एनव्हीसी आपल्या ह्याच्यात आत्मसात केलेला आहे. जगण्यात, व्यवहारात, इंटरॅक्शन मध्ये, दिनचर्येत तुमच्या एनव्हीसी आत्मसात झाले. बरोबर ना राजेश सर? येस. थँक्यू. थैंक रीना जी, आपको कुछ जोड़ना है रीना जी? नहीं दे रहा. ये सुनकर कोई रिस्पॉन्स आपने ये सुनकर हंसराज, मीनाक्षीताई, प्रणाली, तुम्हाला काय सांगायला पाहिजे? हा. एनी रिफ्लेक्शन्स? तुम्ही कुठून लँग्वेज मध्ये सांगा, आपण ट्रान्सलेट करूया. हे ऐकून मला काही बोलायचं आहे. म्हणजे फादर यांचं मी आभार मानतो याच्यासाठी, कारण त्यांनी खूप लिव्हिंग एनव्हीसी बद्दल आणि आमची नोंद घेतली. याबद्दल मला थोडं कौतुक वाटतंय आणि मला म्हणजे प्रेरणा पण मिळते आणि मी आनंदी की फादरने खूप थोडक्यात लिव्हिंग बद्दल जे सांगितलं त्याबद्दल मी त्यांचा कृतज्ञ आहे, आभारी. Hansraj is saying that he is feeling very pleased and grateful to you, Chris, for his sensing being seen, that acknowledgement of the living NVC part. So he's feeling very inspired by your acknowledgement, and I guess the need to be seen and to be understood is being met. आणखीन काय अंतराज? आणि नीट सांगा ना तुमची अंतराज. येस. तुम्ही सांगितलं, पर आणखीन काय ऐक? नोंद घेतली पाहिजे माझी. नोटेड, टू बी नोटेड, ती माझी गरज पूर्ण झाली. येस, थँक्यू. आणि तुमचे पण मला आभार मानायचे की तुम्ही उपलब्ध करून दिला आपल्या ग्रुपसाठी. त्याबद्दल आपल्या पण मी आभार मानतो रीनाजी. आणि कोई असे एनीबडी एल्स? तुम्ही हे बी सांगू शकता की तुम्हाला एनव्हीसी कसं हेल्प झाली. हाऊ हॅज इट हेल्प यू? Asit, would you like to? तुम्हाला काय सांगायचं? Yeah, I'm also excited to see Father. Last week, even I thought to meet you, but leaving NVC is quite important. I quite lose every time to
in trying and living, I just being in concept and trying to evaluate what is feelings and needs. So being more conceptual mostly, but when you are saying is trying is being only in training and being in only in workshops, but yeah, living is quite important. So yeah, I'm feeling very excited to learn more about living aspects of NVC. Yeah, thankful to you and Rinaji to yeah making such a space to us to learn this one, which we are quite eager to learn from. I think from a decade, from 6-7 years. I think. Yeah. Decade, 7 to 10 years. Yeah. Yeah. And right now you're at Azim Premji University. Could you share about that? Yeah. Yeah. Even just an hour before we are in discussion, and one of my friend was very frustrated that there is quite many groupism is going on, and even at that time I went inside the again that evaluation part of my own thoughts, and then after coming to my room and I was thinking how I can use that instant in NVC. So yeah, that part was quite encouraging to me, that how when father was explaining now how I am initiating those values of evaluating value system, understanding the values what other guy is telling. So yeah, I'm right now in Azim Premji University, learning development thesis. So yeah, it is quite important to understand what value or what need is having another person. So yeah, that is a very small incident happened right now, but it's happened in every day, every class. We involved in such a intellectual understanding, and we just forget how the specific needs of that group and um, even individually we want to um, acknowledge at that time. Yeah. So I am experiencing this in university, in academic. Do you have a question for Chris? Asit? कोई सवाल? मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग जब भी इसको जिस तरीके से जिस इंटेलेक्चुअल एकेडमी में, या जब भी हम लोग इंटेलेक्चुअल बोलने से अच्छा नॉलेज, और इसमें जब हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे समय पे हम लोग नीड्स और फीलिंग्स के एस्पेक्ट से हम लोग उसको किस तरीके से डील किया जा सकता है? Chris, there's a question that when we are in an academic environment where there is an intellectual engagement, how can we remember feelings and needs, and yeah, what is your actually you know, I'm also a lecturer at the university, and I designed the communication and conflict management subject. I designed the syllabus and everything. And in that, I put NVC as very central, integral part of that program. And I know what you're talking about, how difficult it is when you really do this NVC in a university system, because
there is a real struggle of, the head and the heart. They say the longest journey is from your head to the heart. So this is always a struggle, that people are so keen on learning maybe sometimes, and so they get lost in their concepts, and so then this whole system of evaluation, assessment, marks, and all that comes in, which sort of disturbs this whole presence of NVC, which is really consciousness, which is quite different from all what we do in the universities. So it is a struggle, but it's worthwhile, because struggles are always good for all of us, and because that is how we learn, and that is how we grow and how we live, and that is part of life. And it's to be able to take it and not to reject it or to run away from it, but to face it and to embrace it, that's the only way that we do. So it's a struggle, but at the same time, it's a great learning, a learning of a different kind. So now I designed this course, and I was teaching not only to my communication students, but also to the other students, the other departments, because they all wanted to learn. But then now that I am retired, the others took it over, and they think they know, but they don't, unfortunately. So the NVC that they teach becomes very static, and so it loses all its true energy and strength and things like that. So that is a struggle, but that's why I was trying to keep. Even now, of course, sometimes they call me to teach the course, though I am retired for some time from the university. But I do teach sometimes when they call me. So yeah, it's good to keep in mind, and also to notice, especially when you're in the university, to see this gap between the intellectual understanding and the heart understanding and the heartfulness of NVC. I'll try and translate. Sure. Thank you. So, Asit, do you want to translate in Marathi or Hindi? Asit? Then I and Purva can fill up. So म्हणजे मी माझ्याबद्दल बोलू की क्रिस्ती बोललं जाते? हां. दोन्ही सांगायला पाहिजे सर. तुम्ही खूप सुंदर मांडलायत मुद्दा. तो मराठीत मांडणं आवश्यक आहे, आणि मग त्याला उत्तर दिलंय सर फादरनी. ओके. तर मी आधी बोलत असताना मी हे मांडलं की मी थँकफुल आहे की आणि खूप ईगर होतो की ह्या सेशनसाठी. गेल्या वीक तो सेशन चुकलो आपण, तर एक्साइटेड होतो की हा सेशन होणार म्हणून. मी माझा अनुभव मांडला की मी इथे असताना मी कसं NVC ट्राय करतोय, आणि मी एक इन्सिडेंट पण मांडलं की रिसेंटली एका डिस्कशन मध्ये असताना मी कसं पाहत होतो की NVC मध्ये इथे किती वापर केला जाऊ शकतो, आणि डिस्कशन होतं की ग्रुपिझम मध्ये कसं होतं आणि लोक ग्रुपमध्ये कसे डिवाइड होऊन जातात. आणि त्यामध्ये माझा एक मित्र खूप फ्रस्ट्रेटेड होता, पण मी ते न करता मी ऍक्च्युली त्या अनालिसिस मध्ये चालला गेलो आणि इव्हॅल्युएट करणं सुरू केलं. तर हे असताना मी फादरना विचारलं की फादर, इंटेलेक्च्युअल अंडरस्टँडिंग किंवा जेव्हा आम्ही तत्वांमध्ये समजण्याचा प्रयत्न करत असतो, तर आणि ते पण आम्ही एका
कॉलेजमध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीच्या याच्यामध्ये असतो, तर तिथे कसं आम्ही आमच्या फिलिंग्स आणि नीड्सला सोबत घेऊन तिथे राहू शकतो. तर फादरांचा कोणीतरी करा, पूर्वजी किंवा रीनाजी. त्यांना सांगितलं की सबसे लंबा सफर हमारे दिमाग से दिल तक का है और हम उसमें खो जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी ये सफर काफी जरूरी है, महत्व का है, और इसके लिए जो भी संघर्ष होते हैं वो हम लें तो यही जीवन है। तो ये एक बात बताई उन्होंने। और फादर ने यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज का एक कोर्स तैयार किया था, संघर्ष और शांति का स्टडीज का, यूनिवर्सिटी श्रीलंका में, कोलंबो यूनिवर्सिटी में शायद। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि ये एकेडमिक एनवायरनमेंट में हमारी क्या समस्या होती है, क्योंकि हम ढांचे में फंस जाते हैं। जब हम कुछ सीखने की, जैसे पहले बताया ना, कि हम जिए, यही एक जरूरी है। शुरुआत वही है कि जीना है हमें। हमें कोशिश करने में जो डाइल्यूशन हो जाता है ना, जो 19-20 हो जाता है, कि हम पूरी हमारी उपस्थिति नहीं दे सकते। इसी तरह से जब हम यूनिवर्सिटी में सीखने की कोशिश करते हैं, तब भी कुछ तो कमी आ जाती है। तो उसके बारे में फादर ने बताया कि ये चैलेंज है, लेकिन ये लेने जैसा जरूरी चैलेंज है। तो ये भी एक तरीका है सीखने का, हम खुद को आगे बढ़ाने का और कंडीशनिंग को ट्रांसफॉर्म करने का। तो इस तरह से उन्होंने प्रोत्साहन दिया और उनकी समझ हमारे साथ जुड़ाई। और ये मुझे अच्छा लगा कि जो दिमाग से दिल तक का जो सफर, वो सबसे लंबा सफर है, शायद जीवन भर का सफर। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी आई थिंक। तो हम डरे ना, हम मायूस ना हो। और मुझे दूसरा ये लगा कि जैसे फादर ने कहा कि ये एकेडमिक जगह में सिखाना बहुत मुश्किल है। अभी रिटायर हुए हैं तो वहाँ पर शायद एनवीसी का भी जो सीख जो है वो एक उसमें भी थोड़ी कमी आ रही है। कभी कभी वो वापस जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो उनको भी अच्छा लगता है कि और थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। और तब उन्होंने जब कहा, तब मुझे ये लगा कि हम जिस तरह से प्रैक्टिस ग्रुप में कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा सेफ स्पेस है, सुरक्षित जगह हम बना रहे हैं एक दूसरे के लिए, और ये हमारी जो कम्युनिटी फैमिली जगह है, उसमें ही शायद हमारा जुड़ने का जो जुड़ने का इरादा है, उसी से हम एनवीसी की महत्ता को भी, इंटेग्रिटी को भी ऊपर रख सकते हैं। तो ये मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा आपसे पहले मैं ये शेयर कर लूं और फिर फादर के लिए थोड़ा ट्रांसलेट करती हूँ। और फिर हमारे पास दो और प्रोफेसर्स हैं ना, और राजेश ऑल्सो इज इन एजुकेशन, और प्रोफेसर योगेश है और मीनाक्षी जी है। तो एंड पूर्वा भी काउंसलिंग टीचिंग में है, तो हम और आवाजें भी सुन सकते हैं। और Chris, I wanted to translate what came up for me. Yeah. Was that when you said that in a university setting, teaching NVC also loses its consciousness, you know. So I felt that in a space like this, in a practice group or a community space like this, when our intention is so much to connect and a sense of safety of each other's holding, I think that this is how NVC can truly thrive and be integrated. So I wanted to celebrate that. Or at that time, I also remember, and I want to really honor Rajesh and Hansraj for their holding that NVC is not only for people who have money, but NVC is for everyone. तो ये जो आपने इतनी साल, for so many years since 2006, you have kept it pure, you know, through your intention, through your own integration.
I really want to honor both of you. मैं राजेश और हंसराज के बहुत 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 आभारी हूँ कि ये जो 2006 से कि भी एनवीसी सिर्फ पैसे से सीखना या जो पैसे लेकर सीखते हैं उनके लिए नहीं है। एनवीसी सबके लिए है, क्योंकि ये एक एनर्जी है, ये एक कॉन्शियसनेस है ना, तो उसको आपने ही जीवित रखा है और प्योर फॉर्म में। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत ही प्रोत्साहन मुझे मिला है आप दोनों से। ये मैं सबसे आज कहना चाहती हूँ। कौन किसको सिखा रहा है, सीख रहा है, सब एक ही है ना। Who is learning and who is teaching is nothing like that in this space. आसित, और कुछ आपके आर यू फीलिंग कंप्लीट या कुछ है और कहना? हाँ, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ जी, थैंक यू। योगेश जी और मीनाक्षी जी, आप कुछ? हाँ जी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद, मतलब बीच में थोड़ा पारिवारिक कारणों से नहीं जुड़ पाया था। अभी मुझे क्या बोलना है वो मैडम? आप आपका अनुभव या आपके कोई सवाल फादर क्रिस से करना चाहेंगे, बिकॉज आप भी टीचिंग। पहले अनुभव बता देता हूँ, फिर सवाल भी पूछता हूँ। हाँ जी। लगभग 2 साल। Then he has a question for you. हाँ, आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है। हो आवाज क्लिअर आहे योगेश जी। आणि एक रिक्वेस्ट, कसं होतं की आपण दुसरी भाषा समोरच्याला समजेल म्हणून ती भाषा बोलण्याचा प्रयत्न करतो। तर आता आपल्याकडे इथे हिंदीचा पण ऑप्शन आहे, मराठीचा पण ऑप्शन आहे आणि इंग्रजीचा पण ऑप्शन आहे, बरोबर? तर मला सगळ्या ग्रुपला मला ही रिक्वेस्ट करायला आवडेल की खरंच तुम्ही कोणत्या भाषेमध्ये अभिव्यक्त होऊ शकता तीच भाषा वापरा। त्याच्यासाठी पूरक भाषा आम्ही कोणी पण ट्रान्सलेट करून घेईल। येस, थँक्यू। अच्छा, नक्की। ओके, व्हेरी खूपच छान। मग तुम्हाला जर मराठीमध्ये अभिव्यक्त करायला आवडेल तर तुम्ही मराठीच निवडा सर। जर तुम्हाला हिंदीमध्ये अभिव्यक्त करायला आवडेल तर हिंदीच निवडा, है ना? म्हणजे कसं होतंय की तीच मोठी समस्या आहे। हाँ, कारण की भाषा खूप महत्वाची आहे। आपली तशी यायला पाहिजे। नाही, नक्की राजेश जी, निश्चित तुमचा हे जे म्हणणं आहे, मी आधी त्याच बाबतीत बोलतो। पहिलं वाक्य म्हणजे आपण सहजतेने जे मूळ भाव आहे ते बदलायला नको, आपल्याला जे बोलायचंय ते, हा तुमचा हेतू आहे निश्चितपणे। तर मला असं वाटतं की मी आधी एनव्हीसी बद्दल जे काही मला 2 वर्षापूर्वी राजेशजी आणि हंसराज सर यांनी एक वर्कशॉप घेतलं होतं योग विद्याधामला, तेव्हा सगळ्यात पहिले एनव्हीसी काहीतरी कन्सेप्ट आहे हे कळालं आणि सगळ्यांना खूप ही वेगळीच काहीतरी कन्सेप्ट आहे, काहीतरी खूप छान आहे असं वाटलं। आणि मग ऑब्झर्वेशन, नीड, गरजा, भावना अशा अनेक गोष्टी मग मी प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल लाईफ मध्येही करायला लागलो। आणि 1-2 प्रसंगही असे घडले की ज्या वेळेला खूप प्रचंड ताणतणाव निर्माण झाला आणि त्यावेळेलाही मला राजेशजींची आणि हंसराज सर या दोघांचं गायडन्स, मार्गदर्शन मी घेत होतो। आणि अशा अनेक गोष्टी आहे, रीनाजींशी पण अधूनमधून बऱ्याचदा बोलणं होत होतं। प्रश्न एनव्हीसी बद्दल खूप काही जाणून घ्यायचं होतं, पण काही कारणास्तव मी ते जोडू नाही शकलो, मध्ये थोडा गॅप पडला। पण निश्चितच मला याच्यामध्ये अजून शिकायला, म्हणजे जगायला, जसं तुम्ही जगतायत राजेशजी, रीनाजी, तुम्ही एनव्हीसी शिकत नाहीये, तुम्ही जगतायत ते प्रत्यक्ष याच्यामध्येच। तर मलाही निश्चितपणे तसं आवडेल। आणि 1-2 प्रश्न आहेत फक्त माझे, मग आपण जर ते याच्याशी सुसंगत असतील तर आपण डिस्कस करावे, अन्यथा आपण सेशन आपण पुढे करू। एक प्रश्न असा होता माझा की अनेकदा असं होतं की काहीही कारण नसताना आपण प्रचंड प्रमाणात डिस्टर्ब होऊन जातो कधी कधी। म्हणजे कारण असताना डिस्टर्ब होणं स्वाभाविक असतं, इफ एनी रिझन। पण जर कारण नसेल, म्हणजे मनातले सगळे काही ते जे काही अनेक प्रश्न उठतात, मागच्या भूतकाळातल्या घटना, तर याच्यासाठी काय करायला पाहिजे? म्हणजे आपण प्रचंड विश्वासाने भरलेलो असतो
पण अचानक काहीतरी अशी एखाद्याने फुग्याला सुई टोचावी आणि परत आपण ज्याला आपण म्हणतो ती सगळी हवा आपली निघून जाते. आणि दुसरी गोष्ट, आपण बदलण्याचा प्रयत्न करतो पण मूळ स्वभाव मला वाटतं तो मध्येच कुठेतरी डंक मारतो, असं मध्येच येतोच तो कुठेतरी प्रत्येक वेळेला. आपल्याला वाटतं आपण बदलतोय, आता निरीक्षण करतोय, ऑब्झर्वेशन करतो आहे. पण मग हे 2 प्रश्न आहे की अचानक असं का घडतं, आणि हे 2 प्रश्न होते. मला या ठिकाणी बोलायला संधी दिली तर थँक्यू. ओव्हर टू रीनाजी. Thank you. Purva, would you like to translate for Father Chris and everyone else in Yes, English? Sure. Yogesh sir is very grateful to Rajesh sir and Hansraj sir since they have been conducting these sessions. The first time he heard it, I think it was 2016. Am I right? When I'm terrible with dates. So it was few years, and that was the first time he heard. And he was very curious, Yogesh sir. He was very curious. He said, this is something new. It's very wonderful. I would like to know more. And then he was drawn into NVC. And since then, the journey has started for him. And he has been in touch with Rajesh sir, Hansraj sir, and also Reena when he has had difficulties in his day-to-day living or having disturbed situation conflicts in his life. Am I right, Yogesh sir? Reena? Yes, absolutely right. Absolutely right. So now the question that he would like to ask Father Chris is that there are disturbances and there is seemingly no reason for those disturbances. So why am I feeling so disturbed? Probably there are some events from the past that crop up, that surface. I do understand that I need to change. There should be a change in me. I do change the OFNR I use. That's what Yogesh sir is saying, that he uses it. And yet, several times I see my surfacing of my nature, which comes up, which I am not able to change into. Reena, I'm right? Correct? Know what I'm saying? This is my interpretation. Right? So then he would like to know that he would like to keep this change continuous and not go back to habitual habits or responses is what I have interpreted. Yogesh sir, is it right? Yes. This is the question presented to Father Chris. Thank you. Yeah. Well, thank you. Thank you, Purvaji. And this is a very interesting question because it's sort of it's not just a question; it's a personal question. It's about what we encounter within ourselves, and I think so that need to arise actually at some time or the other. If we are really have the intention of leaving NVC. And I think one of the great advantage of your efforts and your struggles and your history is the fact that you're opened to the grassroots level, you see, because which is a big advantage for NVC learning and teaching, because Marshall himself and from his mentor Carl Rogers, he says that you cannot teach anyone anything. You see, this is what they say. So this kind of opening to the grassroots helps us also to be to really come to the nitty-gritty or the real core of NVC, which is not about teaching, or it is not about learning. It is not about changing. No, you don't really. It's not about changing your life or changing other people. It's not about any of that. It's just touching the consciousness, the new frontier of today.
is this consciousness, which of course even now science is beginning to discover and to acknowledge, recognize, which of course has been talked about for millennia by, all the Indian yogic, all these things, they were talking about consciousness right from the beginning. So, so when you start really, because NVC is actually, it's not about the language, it's not about any learning or teaching, it is about consciousness. So consciousness is something that is accessible to every one of us. Actually, the consciousness is within us, and also the consciousness is without us. And consciousness is the whole universe is conscious. And so also we are part of it. And therefore, this initiative of opening ourselves to the grassroots gives us a big advantage, because at the grassroots level, it is very fundamental and in some ways primitive level of life, you see, in the sense of we are not concerned about learning or intellectual learning or achieving anything at all, but it's about really touching this consciousness of our life, that is what NVC is all about. And so consciousness is not something that you need to change anything in your consciousness, but that you come to the experience of this consciousness. And that is the whole effort of NVC. NVC is not something new, it is already there, it's already in all of us, and it's in every society there is NVC, but it's a question of coming to the experience of this consciousness on this level of NVC. It's a wonderful thing. That's why this new initiative that you all have taken of opening up, not to teach people who can afford to pay or people who can afford to learn or people who can afford to teach, but it is about opening up to the grassroots, people who are living, to be able to opening them to NVC is a wonderful thing, because when you realize to experience and in touch with consciousness, that changes everything. And it's not something that you change, but everything changes. So I'm really very glad and very much encouraged and really enthusiastic about this, opening yourself to begin your work, begin your sharing and Thank you, Chris. It's a great advantage for us because it's much easier. Just like, for instance, I learned all my NVC with the children, right? Of course, I had the advantage of being with Marshall for quite some time and learning, but learning NVC with about 20 children who have gone through the pain and suffering of the war and in their was how I learned NVC, and that was a great advantage for me. I think I realize it now, because there it is not a question of teaching or learning. I never tried even to teach the children about NVC, but only thing I did was trying to live NVC, model this process to the people, to the children that I lived with. And this, of course, made me really enter into the proper NVC consciousness, which is the true NVC. So I'm truly happy and very grateful and
for the work that you all do, because language is it's not that important actually. You see, when you really get to this level of consciousness, language is nothing, right? So it doesn't, you can learn your language, any language you want, you can speak any language you want, it's not a big deal. But actually NVC is consciousness, that is the main understanding. And once you begin to taste, experience in life, living NVC, that is a wonderful way of sharing NVC. Thank you, Chris. एक तो ना मैं बता दूं कि ये एक एक शब्द, each and every word is so precious, everyone's words. So we will translate it either from English to Marathi, Marathi and Hindi to English. ये पूरा recording we will translate it so that हमारे सबके पास ये सारा जो भी हम अभी शेयर कर रहे हैं वो हमारे पास होगा. एक बार फिर से इसको जीने के लिए, इसका स्वाद लेना है. तो जो फादर ने कहा कि ये एनवीसी एक चेतना है और हम इसे सिखा, मार्शल ने भी कहा था कार्ल रॉजर्स के पास जब वो सीखे कि एनवीसी को कोई हम सिखा नहीं सकते, सीख नहीं सकते, क्योंकि ये एक चेतना है और हमें इस चेतना हमारे अंदर और हमारे बाहर, ये पूरी प्रकृति एक चेतना है, ये सब एक ही मूलभूत है. तो इसको हमें छूना है, इसका स्वाद लेना है, इसका अनुभव लेना है. और हम जिस तरह से, जिस ढांचे से शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत यानी हमारा जो प्रयोग है या हमारी जो एफर्ट है हमारा कि हमें जीना है एनवीसी को, तो हम जैसे सही रास्ते पे हम हैं और हमें किसी को कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है, यानी बदलना नहीं है. बदलाव अलग बात है, पर हमें किसी को बदलना नहीं है, खुद को भी बदलना है तो फिर वो ट्राइंग वाली बात हो जाएगी. तो हमें यही याद रखना है कि इस चेतना को जो हमारे अंदर हमारे बाहर है, हम सबके पास है. ऐसा कोई नहीं है जिसको ये चेतना मिल नहीं सकती, छू नहीं सकते. इसमें कोई भी भाषा का कोई ये नहीं है एडवांटेज. क्रिस ने ये कहा कि जो हम ग्रास रूट लेवल पे यानी जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, उसका हमारे पास बहुत बड़ा फायदा है. तो उस फायदे को हम माने और हम एक उसका सेलिब्रेट करें, यू नो दैट वी आर एट द ग्रास रूट लेवल. वो सेलिब्रेट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी जो एक्साइटमेंट है, हमारी ऊर्जा है सीखने के लिए, जीने के लिए, वो और भी इसको हवा मिल सकती है. तो इतना तो भी हाँ मुझे ये आया है. और यह सुनकर किसी का कोई रिस्पॉन्स हो या सवाल हो तो प्लीज. Veena, I'll request you to add what Father Chris learned from the children, 20 children, his experience. That is also very touching. Yeah, I thought कि एक जो ये एसेंस है ना पूर्वा, इसका एक बार कुछ रिस्पॉन्स ले लेते हैं और फिर फादर क्रिस ने किस तरह से एनवीसी को अपने जीवन में उतारा, वो एक बात जो है उनकी पर्सनल अनुभव की, वो हम एक बार और लेंगे. पर पहले जो उन्होंने जो मूल बात कही, जैसे असित आपने कहा था कि मेरा मूल स्वभाव आ जाता है, वो मूल स्वभाव तो चेतना है ना. तो हम हैबिचुअल जो हम अनलर्न कर रहे हैं, अगर ये हम याद रखेंगे तो हम ये थोड़ा सफाई का काम है, पॉलिश का काम है. हमारा मूल स्वभाव तो चेतना ही है. मी पण त्याच विषयी विचार करत होतो की जर ते चेतनामध्येच आहे तर आपल्याला फक्त तिथे जाऊन तिला म्हणजे फक्त ओपन करायचं आहे, तिला खुलं करायचं आहे आणि ते प्रयत्न आवश्यक आहेत. आणि मग तिथे जर तो खुलापण आला तर
आपण त्याला टच करू शकतो. म्हणजे याचा इन्स्पिरेशन मला आला जेव्हा फादर बोलत होते. ते कळलं तर तुम्हाला अवघड लागते की इझी लागते? नाही, मला जेव्हा त्यांचे अनुभव ऐकले की ते टेक्निक नाही आहे आणि ते कुठलं म्हणजे असं प्रशिक्षण नाही आहे. आपण जेव्हा त्या चेतनेला टच करतो तर आपण त्याला जगत असतो, हे मला समजून आलं. पण ते तुम्हाला इझी लागलं या ज्यादा कठीण? मला इझी वाटलं. म्हणजे याच्या आधी जेव्हा ते म्हणत होते ना की त्याला नोटीस करणं खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे जेव्हा युनिव्हर्सिटीच्या विषयावर बोलत होते तर ते म्हणत होते की त्याला नोटीस करणं खूप महत्वाचं आहे. तर जेव्हा ते आपण नोटिसिंग सुरू करतो तर तो आपोआप मग त्याला आपण म्हणजे जे पण खुलपण आहे ते येणं सुरू होत आहे असं मला वाटतं. आणि त्या चेतनाला मग आपण टच करू शकतो. त्या कॉन्शियसनेसला आपण पकडू शकतो. थैंक यू आसिफ. मीनाक्षी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, फिर फादर का जो बच्चों वाला है वो भी लेते हैं, पर एक बार मीनाक्षी जी को सुन लेते हैं इस चेतना के बारे में. आप अनम्यूट करेंगे? आवाज नहीं आ रही. Purva, your host, can you unmute her? मीनाक्षी ताई, तुम्हाला एखादा फोन आला असेल त्या काळामध्ये आणि त्या फोनमुळे ना हे झूम हँग होऊन जातं, बरोबर? तर 2 मिनिटासाठी कट व्हा आणि पुन्हा ह्याच लिंकला जुळा. कदाचित तुमचा आवाज येऊ शकेल, म्हणजे ते बटन ऍक्टिव्ह होईल. असं होतं कधी कधी. हा एक आय एम अनएबल टू अनम्यूट हर. ओके ओके ओके. रिजॉइन करा. रिजॉइन करा. तोपर्यंत आपण जयदीप आहेत. हाँ हाँ. जयदीप जी, तुम्ही बोलू शकता तोपर्यंत. मला पण छान वाटलं जे फादरनी ज्या शब्दांमध्ये सांगितलं आहे. तर एक्झॅक्टली आसिफचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो पण मी पण त्याला फील केलं. तर मला पण ते म्हणजे असं वाटलं की ती जी कॉन्शियसनेस आहे त्याला म्हणजे बघण्यासाठी म्हणजे त्याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे, नाही का? तर मी ते फील करत होतो आणि ते किती इझी आहे ते पण त्याला मी बघत होतो. थँक्यू. Chris, there is a sense that understanding or listening, that it is to be observed, it is to be experienced and touched, this consciousness. There is much ease, you know, and that is the overall reflection. And I'm also feeling so happy and relieved that this is the you know, the understanding that it seems easier. And it only kind of validate, no, but it kind of gives us that sense that we are truly in that living NVC space. Otherwise we would have found it more difficult. Yeah. Yeah, it's very, very good to stay with this understanding of NVC as consciousness, because you can easily fall into misunderstanding as technique, as you know, as an art and all that sort of thing.
which takes you away from this consciousness. Consciousness is something completely different, and and I think even in our own NVC organizations, we have this problem, because we are also, every one of us is learning to teach and teaching. And so this thing, of course, this emphasis on this learning and emphasis on teaching takes away all that that consciousness part of NVC. Actually, it is not only for NVC, actually even in education. Already Paulo Freire, who critiqued education, he said that, you know, our universities have to change, because what we do now is not really very useful for humanity. Teaching and teaching becomes this consciousness, right? So that's why he says the best way to teach or learn is through dialogue. Dialogue means just being connected, connecting, and continuing this, living in this connection. That is what dialogue is all about. So actually, even our universities, they are struggling to change into that thing, but it's not that easy. It's not that easy, because we are so in communication, they call it the transmission model, you see, of this model of transmission. That is just to transmit, just to you know, get across something, but that is not it. Actually, the true learning comes from really connecting, and that is in this connection is what education is all about. So NVC very much so, and that is एक और मुद्दा आया. Thank you, Chris. Yeah, it's an important point. I want to express this in Marathi and Hindi. कि एक और मुद्दा है कि हम, एक संवाद है, हम कुछ चर्चा नहीं कर रहे, इंटेलेक्चुअल ऐसा कुछ चर्चा नहीं कर रहे, डिस्कशन नहीं है, ये संवाद, डायलॉग है. और दूसरा कि ये जो हम याद रखेंगे कि चेतना है जो हमारे सभी के पास मौजूद है, अंदर भी बाहर भी, ये पूरी प्रकृति, सृष्टि एक चेतना है. तब जाकर हमें एक ये महसूस होगा. और फिर ये जो हमारा एजुकेशन का जो मॉडल है, जो प्रसारण मॉडल है, ट्रांसमिशन मॉडल है, वो एक मुश्किल है. एक जैसे ट्रैप कहते हैं ना, उसमें हमें फंसना नहीं है. ये प्रसारण मॉडल में हम नहीं जाकर, जो हम जीने की कोशिश भी मैं एक ट्राइंग में जा रहा है, पर जीने का हम अवसर ले रहे हैं इस हमारे समूह में, और सेफ्टी के साथ, सुरक्षित रहकर, एक हिम्मत के साथ. यही एक तरीका है, यही एक जीने का अवसर है. तो क्रिस काफी इंस्पायर्ड है, और उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है हमारी बातें सुनकर, और हमें और भी ये आगे ये संभाल रहे हैं, समझ रहे हैं. तो मीनाक्षी जी, आप आ गए हैं फिर से, तो आप कुछ कहेंगे? आपका वीडियो भी ऑन कर सकते हैं अगर करें तो, नहीं तो बोलिए. Her audios doesn't seem to be connected. Oh, okay. All right. Then मीनाक्षी जी, जब तक आपका ऑडियो कनेक्ट होता है, तब तक मैं फादर क्रिस ने मार्शल के साथ जब उन्होंने शुरुआत की एनवीसी की, तब उन्होंने 20 बच्चों के साथ, जो
युद्ध में जो श्रीलंका में जो वॉर हुई थी, उसमें जो बच्चे अनुभव उनको हुआ था और जो ट्रॉमा हुआ था, उन बच्चों को फादर क्रिस ने उनकी जिम्मेदारी ली, उनको संभाला और उनके साथ एनवीसी जिया। और ऐसे उन्होंने एक उनका बस एनवीसी का यही खास अनुभव है कि मैं कैसे इसको जीऊं और दूसरे के अनुभव में उनके साथ रहकर उनको उपस्थिति देकर मैं किस तरह से एक मॉडल, यानी मैं खुद एक उसकी चेतना बनूं। और यही एक हमारा इरादा है एनवीसी को हमारे मनुष्य जात के लिए हमें ऐसे ही इसका प्रयोग करना है, इसको जीना है। तो मैंने फादर क्रिस को ये भी कहा कि हमारे समूह में हम शॉर्टकट में शायद जा रहे हैं कि जीने का तरीका लेकर जी कर हम जो इसका योगदान दे रहे हैं, खुद के लिए भी, अंदर भी, बाहर भी, हमारे फैमिली में भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब हम सीपीपी को पकड़ते हैं और बाकी चीजों को पकड़ते हैं तो थोड़ा कमीपना लगता है ना हमारे अंदर कि हम कैसे पहुंच पाएंगे। और आज फादर को सुनकर शायद मुझे तो बहुत ही उत्साह तो है, लेकिन आराम मिल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं। सो ग्लैड कि हमारे साथ फादर है। So, Chris, I was just sharing that, when we look at the CPP and all these processes, we have a sense of doubt, less than, how will we, it seems like an uphill task. But today with you, listening to you and sharing from our hearts, I think I'm in touch with what we sense we are doing and what we are actually doing. There's a gap, and today you are helping us to fill up that gap and to truly hold this beauty of our journey, in its wholeness. इसकी पूर्णता में हमारा सफर है, हमारा समूह है, उसकी पूर्णता को हम आज अभी अनुभव उसका कर सकते हैं। और मीनाक्षी जी, थैंक यू, आप आए, आप कोशिश करिए प्लीज। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, नमस्कार फादर, नमस्कार रीना जी मैम, नमस्कार हंसराज जी, राजेश जी, नमस्कार। मी एनवीसी मध्ये जेव्हा आले ना त्यावेळेस मी खरोखर डिस्टर्ब होती, पर मालेगावचे जे आमचे हंसराज जी ते जेव्हा घरी आले आणि त्यांनी मला एनवीसी ची माहिती सांगितली की मॅडम आपण का डिस्टर्ब आहात, काय झालंय, तुम्ही एवढं नर्वस माइंड का असता। त्यावेळेस माझी आई आजारी होती आणि मी टीचर असल्यामुळे सर्व्हिस आणि घर आणि ते आईचं आजारपण यामुळे मी खूप डिस्टर्ब होते। परंतु त्यांनी मला इतकं छान पद्धतीने एनवीसीचं माहिती सांगितली की मॅडम जे कर्तव्य आहे ते आपल्याला करावंच लागणार आहे, त्यापासून तर आपल्याला पळता येणार नाही, आपल्याला ते करून आणि सर्व्हिस पण तुम्हाला करायचीच आहे। आणि कुटुंब प्रमुख असल्यामुळे तर एनवीसी म्हणजे एक जीवन जगण्याची कला आहे की जे बाहेर काय वातावरण होतं ते आपल्या आतमध्ये त्याचा परिणाम न करता आपल्याला कर्तव्य पार पाडायचे हे एनवीसी मधून शिकले मी। आणि एनवीसी मध्ये जगण्याची खरोखर कला आहे आणि ते स्किल ज्यांना आलं ते जिंकले समजायचं। थोडंफार राग, क्रोध कधी कधी यायचा, परंतु मी स्वतःवर इतकं एक कंट्रोल केलं आणि भरपूर आपले सेशन झाले। त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असले तर मी हंसराजजी, राजेशजी यांना विचारायचे आणि रीना मॅम तर आहेतच म्हणजे प्रेमाचा सागर आहे आणि त्यांच्याकडे पाहून एनर्जी वाटते की खरोखर तुम्ही एवढ्या एनर्जेटिक आहात
की आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला आमची लाज वाटते की नाही आपण तर करायलाच हवं, त्यात सहभाग घ्यायला हवा. परंतु काय झालं कोविडच्या याच्यामुळे आम्हाला ऑनलाईन टीचिंग करावं लागलं आणि दिवस आम्हाला त्या मोबाईलवर राहावं लागायचं आणि मग कधी-कधी आमचे सेशन मिस होऊन जायचे. त्याबद्दल मी व्हेरी, व्हेरी सॉरी. आणि खरंच NVC मुळे मला जगण्याचं बळ आलं. NVC म्हणजे एक प्रेरणा आहे, मोटिव्हेशन आहे, की खरोखर आपल्याला जीवनामध्ये यश, अपयश, सुख, दुःख, आशा, निराशा भरपूर येतात आणि त्यातूनही आपण हसून उभं राहणं या जगात हे फक्त NVC करू शकते, बाकी कोणी नाही. ना कोणी डॉक्टर ना कोणी काही. मेडिसिन म्हणजे NVC. येस. आणि खरोखर प्राउड वाटतो मला आपल्या टीमचा आणि प्रत्यक्ष रीना मॅम तुम्ही भेटला तर आमचं सौभाग्य की तुम्ही यावं, मालेगावला यावं, आम्ही तुमचं स्वागत करू आणि खूप ओढ आहे तुम्हाला भेटण्याची की कधी एकदा भेटाल असं वाटतं. आणि आपण कोण, कुठले, वेगवेगळ्या क्षेत्रातले, वेगवेगळ्या म्हणजे गावचे वगैरे, परंतु असं एक हे होऊन जाते, युनिटी होऊन जाते की आपण एकमेकांचे रिलेटिव्ह हार्ट कनेक्शन मधले होऊन जातो आणि एकमेकांचे प्रॉब्लेम इतके जवळून बघतो ना, तर आपल्याला सुद्धा असं वाटतं की नाही हे आपले रिलेटिव्ह आहे आणि आपण एकमेकांसाठी संपर्कात आलं पाहिजे, एकमेकांचे सुख-दुःख शेअर केले पाहिजे आणि त्यातून आपल्याला जो आनंद मिळतो, आपल्या काही समस्या असल्या त्यावर आपलं शंकेचं निरसन होतं आणि वेळोवेळी हंसराजजी करतात, राजेशजी करतातच ते आणि आम्ही त्यांचं डोकं खातो आणि खाणार. शंका शंका विचारून ते पण न कंटाळता आमच्या शंकेचं निरसन करता. ऑब्झर्वेशन कसं करायचं, निरीक्षण कसं करायचं, आत्मपरीक्षण करा आणि स्वतः मध्ये डोकवा, स्वतःचे गुणदोष वगैरे तपासा आणि म्हणजे तुम्हाला बाह्य जगात कसं वागायचं, काय वागायचं हे सगळे ते छान स्टोरी वगैरे सांगून आम्हाला म्हणजे मोटिवेशन करतात. आता कधी-कधी मिस झाल्याबद्दल मी क्षमा मागते. परंतु आपलं सेशन असंच चालू राहावं आणि NVC मुळे एक जगण्याचं बळ मिळते, एक टॉनिक येते. माणसाला डिप्रेसिव्ह मधून निघण्याचं टॉनिक आहे. कारण आजकालच्या जगात मनुष्य खूप पटकन डिप्रेसिव्ह होतो थोड्या कारणावरून आणि मनोरुग्ण सुद्धा होऊ शकतो. पण जर आपली टीम अशी छान असली, एकत्र आपण एकमेकांच्या संपर्कात राहिलो तर आपले जे प्रॉब्लेम आहे ना पटकन सुटतील आणि आपण एकमेकांना आधार म्हणजे आधार देऊन एकमेकांना पुढे काढू असं मला वाटतं. आता मला धन्यवाद. असं वाटते की क्रिसला सगळं ऐकून झालं, हो. सगळं कळलं. मला हो. असं क्या बात, क्या बात. मला असं वाटतं तुम्ही असं सांगितलं ना. What I'm saying, Chris, is I have a sense that you got it. You understood. You could sense everything that Meenakshi said. Chris, would you like to respond? Yeah, the language is very irrelevant in this case because you could feel the consciousness, you know, the vibrations of the consciousness. That's what really communication is all about, and I'm sure anyone could really understand just what was said now, you know. So that is so much alive. It's lovely. Thank you. मीनाक्षी जी, क्रिस यही कह रहे कि जो आपने जो शेयर किया उसकी जो चेतना है वो महसूस कर पाए और वो हम सब उसको जी पाए आपके साथ. तो बियॉन्ड कळलं. हो. थँक यू. और उसके आगे आप हम सबको ले गए, है ना. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. और अभी हमारे साथ विश्वजीत है, प्रणाली है और संजय जी है जिनको हमने नहीं सुना. तो विश्वजीत की शादी होने वाली है. अरे वाह. हाँ, जनवरी में. वाह. कॉन्ग्रेचुलेशन. आप है क्या हमारे साथ? आप कुछ कहना चाहेंगे विश्वजीत? मुझे He's अच्छा getting लग रहा है. married in January, end of Jan, Chris.
and I'm requesting him to share his whatever he wants to share. Hanji. हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने आज का सेशन जब मैंने व्हाट्सएप ओपन नहीं किया था और जब मैंने देखा कि आज फादर का सेशन है और मैं आउट ऑफ था, तब मेरे मन में इतनी उत्सुकता बढ़ी इस सेशंस को। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने 6 बजे तक घर पहुंचना है करके मैं निकला। उस दरमियान राजेश सर के 2 बार मुझे कॉल आए, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया क्योंकि मुझे 6 बजे तक घर पहुंचना था। तो और मैं वैसे ही पहुंचा। ये जो सेशंस को अटेंड करते वक्त मैंने एनवीसी के जब फर्स्ट या 2 सेशंस स्टार्टिंग के जब मैंने अटेंड किया था राजेश सर के और रीना मैम के, उस सेशंस की कुछ मुझे याद आई जब हमने ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड और रिक्वेस्ट इस आयाम को उसकी पढ़ाई की थी, उसको जान पाए। और उसको लेके जब मैंने अपने पर्सनल लाइफ में, मैंने अपने ऑफिशियल लाइफ में जब उसको उतारने की कोशिश किया, तब मेरे मुंह से एक ये आया था कि यार एनवीसी ये बदलाव का प्रतीक है, यानी ये बदलाव लाता है, ये खुद में और दूसरे में भी। तो इससे एनवीसी से स्पष्टता मिलती है कि करना क्या है हम। तो उस स्पष्टता के कारण बहुत से जो संघर्ष थे रहते खुद में और दूसरों में, उसको जान पाने के लिए बहुत आसान होता है। तो अभी जब फादर आज के सेशंस में जब बता रहे थे चेतना के बारे में, तो उसको भी मैं देख पा रहा था कि चेतना, उसमें फिर मेरा एक सवाल ये था कि इस चेतना को और कैसे विकसित किया जाए, चेतना को कैसे विकसित किया जाए। और अलग अलग जो संगठनाएं रहती है, तो अलग अलग संगठनाओं के अलग अलग पर्पज होते हैं, और उनको जब साथ में लाके जब हम कोई काम करते हैं, तो उस वक्त उसके जो संघर्ष रहता है, उस संघर्ष को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरे जो सवाल थे। बाकी मैं काफी खुश हूँ आज के इस सेशन से। थैंक यू विश्वजीत। राजेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ असित। मैं ये बोल रहा था कि इसी के साथ हम एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं कि संगठनाओं की चेतना को एक साथ लाने में कैसे मदद कर सकती है। Can you translate Rajesh and Asit? What we translating, Reena, for the Vishwajit? Yes. So, Father, the Vishwajit says is also one of the points. Vishwajit थोडं समराइज करा मला, कारण की मी ना एक दुसरं काम करत होतो, त्याच्यामुळे थोडं आहे ना हे होऊन गेलं ते त्याच्यात, जो संघटना के बारे म्हणजे एवढा मोठा सेंटेन्स। हाँ, यस, ओके, क्लिक, यस, आ गया मीना, रीना जी, थैंक यू। So, Father, in words or in India, the various types of the organizations, and they will also the personal agendas or the aims or the objectives or visions. But the Vishwajit is Vishwajit intention is how can we interconnect to the all organizations, and his intention is the another types of the organizations is connected to the each others, and how can we use the NVC consciousness in these all organizations, and the all organizations is one head or in one NVC consciousness in this. Yes. So that's a very useful question also, because that arises in the sense how we could pool our energy and work together. It's basically, it's a question about community, I think. And that's not going to be easy, but of course, it doesn't matter whether it's easy or difficult, because actually when you get into NVC, these two words has no meaning.
easy and difficult does have no meaning, because life is, it is as it is, you see. So that is what whole NVC is about. So these two words have no meaning really when you really enter NVC, because you are entering a different field. So, so the only thing that you need to take care of is not to fall into the organization, because there are lots of difficulties with any organization, because they are all human designs, right? They are not about consciousness. They are about something else. So as long as to maintain your consciousness, NVC consciousness in these organizations is sometimes difficult, sometimes very difficult. I mean, even if you take the very simple thing about assessment, certification, all these things, actually they don't come into NVC. But we still do that, but keeping ourselves in that presence, in that fullness of that consciousness, which is a challenge. Actually, we need to really, so as long as you can stay with your consciousness, then you can find ways of dealing with any problems, any difficulties that you might call it difficulties. But the moment that you lose that consciousness, fall away from that consciousness of NVC, then of course everything becomes more difficult, and things begin to come up. You see, I mean, even I see people who are learning NVC and trying to become certified, and I see a lot of frustrations, lots of struggles and all that, I see. And the requirement to give portfolios and all those things, they all become difficult tasks. But as long as you stay with your consciousness of NVC, you know how to navigate all these difficult areas. But the moment that you fall away from that consciousness, everything becomes extremely difficult. So when you know NVC, it's not only that you know NVC, you know that know NVC, right? So this is what consciousness is all about. Because no one, once you touch that consciousness of NVC, you don't need any certification, you don't need any assessment, because it's very transparent for you that you are living this process, because you are experiencing it. Right? So when you stay with that experience, then of course, all these, when you get into organizations, all these difficult maneuvers and difficult things become much easier. You know how to navigate them. Right? So what happens is, sometimes in organization, we try to make things efficient. And that's a very dangerous word, because once we want to make things efficient, then we try to do ways of making it efficient and reducing our real connections. Right? So then, of course, power begins to build up in certain areas, and there are lots of difficulties. The flow does not come. The flow is sometimes stopped. Right? So while if you stay with NVC, stay with that consciousness, not only you can stay with your own consciousness, then you can also help the organization to flow, because organization also gets stuck, because it's a human design. There will be lots of blocks, difficulties, there won't be easy flow. But if there are people who are living part of that organization, who are conscious of NVC or living that consciousness, NVC consciousness, they are always in flow. Right? So then they can
really free and help the other people also to free and flow, which is important for any organization, that there should be a flow, not blocks. Right. I mean, that's why I think Paulo Freire, he was talking about this whole education. He says there are he has written a small booklet called Pedagogy of the Oppressed, people who are oppressed by power and wealth and all those things. And so when you teach these people, there is a specific pedagogy, specific method of teaching, right? Where he says, actually, these are the people who are oppressed are the ones who are capable of freeing the people who are oppressing, right? So which is a very interesting way that is the same thing with NVC. NVC is when you are really live in the consciousness of NVC, you have the flow, right? And you are also capable of introducing and opening up blockages in organizations and let things start flowing, you see. So it's an interesting, so it's always the question of, sometimes when we are learning NVC, we try to see who is speaking NVC, and we try to say, oh, you're not speaking NVC, you are, and but here, when in my own experience, when I'm learning NVC with these children, there is no question of, because I never talked about NVC. It is always about myself, to maintain the flow of this consciousness in myself. That is what is most important. And as long as you can maintain this flow of consciousness, NVC consciousness, you will also find ways of unblocking, helping other people who are stuck. Even people who are certified trainers could be blocked and stuck. So you can help them, you see, as long as you stay with your consciousness of NVC. So it's a great footsteps, Father, because he is with children and he is living it. So I see a lot of similarity in Rajesh, your journey, and in Father Chris's journey. Because in COVID times, the way Rajesh has gone from village to village or home to home to keep inspiring the children, connecting with the children, it's as good as what you might have done when the children were affected by war. तो मैं यही कह रही हूँ कि राजेश का भी जो अनुभव है 2 साल से, जो गांव-गांव और घर-घर जाकर राजेश, जो आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहे हो और जीवन चेतना की एनर्जी को आप जी रहे हो, तो आप यही कर रहे हो जो फादर क्रिस ने युद्ध के समय जो बच्चों के ऊपर असर हुआ था वो किया था, जो आप कोविड के समय पर जो बच्चों पर असर हो रहा है और हुआ है, उसको आप वही आपका बस वही एक सफर है, देख रहे हम। और फादर क्रिस को 5 मिनट जल्दी जाना था, शायद उनका डिनर टाइम हो या जो भी प्रेयर टाइम हो। तो क्रिस, it's almost 5 minutes to 7:30. So we are very, very grateful, and I'm guessing we would like more time with you. So, yeah, we can meet always. There's no problem. Yes. Yeah. हम थोड़ा और we'll stay back a little bit, but we would like to say goodbye to you with a lot of love and respect. बहुत बहुत धन्यवाद और आदर आपको. Thank you. Thank you is a small word. It's just lovely. Thank you very much. And actually, I Yes. enjoyed this meeting with all of you, and wish you all the very best. And I think we are all in the same experience. That's wonderful. That brings us together. Yes. Thank you very much. Yes. Thank you. Bye bye. Bye bye. बाय बाय. Thank you. Bye. हम रुकते हैं थोड़ा. फादर को आपण थांबणार आहोत थोडा वेळ.
फादर यांचं हे जातील. मीटिंग संपली नाहीये अजून. हो. आणि कोणाला 7:30 ला जायचं आहे तर जरूर. हो हो हो. म्हणजे आम्ही हे म्हणत आहोत की फादर यांना जायचं आहे. जर मीटिंग संपलेली नाहीये, पण तुमची पण काही अडचण असेल तर तुम्ही सांगू शकतात. हो. I think we will, Chris, we will stay back for another 15 minutes or so. Okay, and thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Yes, bye. Ha, आता सांगा. Reena, should we continue the recording or do you want to restart? No, continue. No. This is our celebration ना. आपलं काय हार्वेस्ट काय सांगते हार्वेस्टला? येस. कापणी आहे आता आपली. प्रणाली आणि संजय, तुम्ही काय नाही, तुमचा आवाज. हेलो. हेलो रीना जी. मैं तब से चांस देख रही थी मैं कब बोलूं. बट चांस मिला तो फादर चले गए. नहीं, पर फादर फिर से आएंगे. ओके. हम नेक्स्ट सैटरडे उनको फिर से बुलाएंगे. ओके. हाँ जी. मॅडम, मी फक्त ऐकतो बरं. आता मी गाडी चालवतोय फक्त आणि सगळ्यांचं ऐकतो. खूप छान वाटलं एवढंच. मॅडम बोलतील कंटिन्यू. मी गाडी चालवतो म्हणून तुम्ही कॉल केला तर कदाचित सांभाळून. हाँ जी. हा, जर तुम्हाला सुरक्षित वाटत असेल योगेशजी, तर तुम्ही दोघी गोष्टी करा. नाही तर इथून तर पुढचं रेकॉर्ड तुम्ही ऐकू पण शकतात तुमच्या निवांत वेळेला. हो, फक्त ऐकतोच आहे म्हणून मी म्हटलं. ओके, थँक्यू. जरूर. रीना जी, प्रणाली जी को कुछ कहना था ना? हाँ, मुझे एक्चुअली मैं सबके पॉइंट नोट कर रही थी, जैसे पाटिल सर ने, जो योगेश सर ने बताया, फिर असित ने बताया, सबका मतलब जो कंक्लूजन निकल रहा था कि चेतना को डेवलप करना है, एनवीसी चेतना में ही लाना है. सॉरी, मैंने किसी को हाय हेलो नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला, मैं डायरेक्ट कम टू पॉइंट. कोई बात नहीं. तो वो जो मैं एक्चुअली भूल जाऊंगी, इसलिए मैं फटाक से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जिस तरह से फादर जी ने भी एक्सप्लेन किया कि अपन को एनवीसी जीना है, एनवीसी अपन को अपनी चिंता में लाना है. तो पहला ही थॉट रिकॉग्नाइज हुआ कि एनवी जो चेतना जो बनती है, जैसे बर्थ हुआ तो तब से वो चेतना बनना स्टार्ट हो जाती है. फॉर सराउंडिंग, फॉर एटमॉस्फियर, फैमिली, every surrounding have increasing चेतना. तो एनवीसी जिस तरह से संस्कार मिल रहे हैं अपन को, जो चेतना अपन बोल रहे हैं कि वो हमारा स्वभाव एकदम से बैक टू स्वभाव में आ जाता है. जैसे पाटिल सर ने बोला कि कितना ही अपन बलून्स में एयर भरे, लेकिन वो एक टाइम पे फूट ही जाता है. और सेम असित ने भी कहा कि कितना ही मैं अपने स्वभाव को ये करूं, लेकिन एक टाइम पे मैं अपने स्वभाव पे आ ही जाता हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब अपन जैसे अपन बचपन से ही वो संस्कार देना चालू कर रहे एनवीसी के, तो वो बिहेवियर में ही नहीं आएगा. जो क्रोध वाला बिहेवियर है, हाइपर वाला बिहेवियर है, या फिर एकदम से हाइपर हो जाना, वो एकदम से स्वभाव में वो एकदम वो चेतना में आएगा ही नहीं. मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे हम गैंगटॉक गए थे, तो गैंगटॉक के जो मैंने वहाँ का इन्वायरमेंट देखा, वहाँ के जो पीपल एकदम साइलेंट. एक्चुअली हमको 3 घंटा लेट हुआ, हमारा ड्राइवर 3 घंटा हमको होटल के बाहर वेट किया, बट हम 3 घंटे के बाद उसको मिले, बट ही इज कम डाउन. उसका स्वभाव ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत हाइपर हो रहा है, चिढ़ रहा है. हमको लग रहा था कि यार उसने 3 घंटा वेट किया, अभी ये कितने इससे हमको चिल्लाएगा, बात करेगा, हेरिटेट करेगा, हमको बोलेगा कि नहीं मैं नहीं लेके जाता. बट वो एकदम पोलाइट रहा. उसका बात करने का भी तरीका सिर्फ हमको इतना बताया कि यार टाइम का इम्पोर्टेंस रखो, यही एक सेंटेंस बोला. बाकी उसने इतना कुछ भी चिड़चिड़ नहीं किया. तो तब ऐसा लग रहा था कि यार सही में इसकी चिंता में, इसका जो स्वभाव है डाउन टू अर्थ, इसका सही में उसने वो खुद को जिया है. तो ये अपन अपने अभी से ही अपन वो अपने चिंता में लाना है. जो बचपन से उनका जो इन्वायरमेंट रहेगा, गैंगटॉक वालों का जो इन्वायरमेंट है, उन्होंने वो बचपन से ही वैसा ही क्रिएट किया है.
तो यार अपन अपने ही स्टडी में अपने गवर्नमेंट को या कुछ जिस तरह से स्टडी है या एक कंपलसरी स्टडी सब्जेक्ट लेते कि यार ये स्कूल में ये एनवीसी कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, तो वो उनको इन्वायरमेंट मिल जाएगा और वैसे ही वो चिंता में जो उनकी चिंता रहेगी वो एनवीसी के साथ ही वो उसको डेवलप करेंगी। सॉरी, मैंने कंक्लूजन भी बताया, उसमें सॉल्यूशन भी बता दी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गई और उसको एक्सप्लेन कर दी। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि किस तरह से अपन उसको लेकर चलेंगे। फोन कर लेना। जरूर, धन्यवाद। रीना जी, और कितना समय तक करना है आपने? 7:30 बजे तक ही करना है ना? हाँ 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 हाँ, पर क्योंकि हमने सभी की आवाज नहीं सुनी ना, तो सोचा 2-2 मिनट हाँ हाँ तो हाँ। दे ही दे, और फिर इसके ऊपर जो भी आप आज जो भी कहेंगे उसके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में। तो ग्रुप में कौन भी बाकी? डाल सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, तो अभी कौन बाकी है, कौन बोलना चाहता है जो जिन्होंने नहीं बोला अभी तक? संजय जी है क्या? हाँ मैडम, मैं जरा लेट आज ज्वाइन हुआ हूँ, हाँ हाँ, इसलिए मैंने पूरा सेशन सुना नहीं है। और कोई लास्ट बात। टाइम जैसे मैंने कहा था कि एनवीसी के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, जैसे अभी प्रणाली जी ने कहा कि ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही हो सकता है, क्योंकि जो है क्रोध और ये सब निकल ही जाता है मतलब। तो इसके लिए जो लास्ट टाइम बात होता कि हर इसमें एक पॉज लेना ज़रूरी है बहुत, कि थोड़ा पॉज लेने की अगर आदत डाल देते हैं तो क्रोध और ये सबसे मतलब एनवीसी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं भी ठीक। कोशिश कर रहा हूँ वो पॉज लाने की। हाँ ठीक है, हाँ, आप कंटिन्यू ठीक कर है, सकते हो। धन्यवाद। अच्छा, और कोई? तो अभी हम रुकते हैं, क्योंकि राजेश भी बाहर गांव है और मैं भी अहमदाबाद आई हूँ मेरे बहन के घर, और आप सबके भी कुछ कुछ तो होगा शनिवार शाम का प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि फादर क्रिस को हम जितना भी उनके साथ जुड़कर, उनको सुनकर और हमारे सवालों को उठाकर, वो भी बहुत प्रेरित होते हैं हमारे सवालों से, हमारे शेयरिंग से। हाँ राजेश। रीना जी, मुझे भी 2 मिनट चाहिए सिर्फ। यस। हाँ हाँ। तो Also थैंक यू। have a question. I also have a question which I would like to address to Reena ji. Okay. Yeah, Rajesh sir, you wrap it up. Reena, we are logging sessions with certified trainers. So can we log this as with Father Chris? I guess. So we'll have to write a summary. Does everybody know that how to log it or? वो हम डिस्कस करते हैं, पर उनके साथ हमें ये ऑनलाइन सेशन मिला है, तो वो तो है ही। तो और इसका हम वीडियो भी सबके साथ शेयर करेंगे, इसका लिंक। हाँ राजेश। यस, तो थैंक यू रीना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो बात कही ना कि जो फादर क्रिस ने वो युद्ध के लोगों के लिए किया था और होने वाला असर है, तो बहुत बार लोगों को है ना वो असर के बारे में समझ में नहीं आता। और जैसा आपने उसको मेरे मेरे कोविड में जो मैंने बच्चों के साथ वो झोपड़पट्टी में या उनके घर में या छोटे छोटे इसमें करके दिया, तो बहुत अच्छा आपने उनके साथ मुझे लिंक कर दिया है। तो बस इसकी खुशी हो रही थी मुझे। यस, थैंक यू। सबको लगा ना ये? यस। और दूसरी चीज, और एक बात भी बहुत अच्छी हुई कि फादर क्रिस को आपने जो जोड़ दिया, और आज जो एक्साइटमेंट है, आज जो एनर्जी है, इसके लिए भी आपका थैंक्स।
नहीं फादर क्रिस जरूर हमारे लिए एक उनको उनके लिए हम ये समुदाय के लिए हमारा समुदाय आज मुझे कंप्लीट लगा पूरा हुआ ऐसा लगा और तो जरूर मैं उनको कहूंगी और हम इसका पूरा शेयर करेंगे और गहराई से बातें हुई वो है ना मुझे भी काफी अच्छा लगा आज का सेशन और मैं भी सभी टीम का ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ कि अपने फादर को हमारे साथ में ज्वाइन किए इस ग्रुप में। और फादर का मैं पहली बार टीम के बाहर के किसी ट्रेनर का आज सेशन मैंने अटेंड किया, काफी इंजॉय कर रहा था मैं। और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं था, वो काफी अच्छा, क्योंकि लैंग्वेज में हम बहुत से उसको शेयर कर रहे थे। तो मैं भी अपने इस एडवांस ग्रुप के टीम के सभी का मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने काफी अच्छे ट्रेनर फादर्स को हम सभी के साथ में इंट्रोडक्स करवाया। तो शायद उनके साथ में आगे में भी एनवीसी की स्टडी करने में मजा आएगा और हम सभी लोग उसको एंजॉय करेंगे जरूर। और आज के दिन की खुशी में हम है ना हमारे का नाम एनवीसी सॉरी एको आ रहा है शायद किस चेंज करोगे? एनवीसी एडवांस नहीं, एनवीसी चेतना। चलो धन्यवाद और शुभरात्रि सभी को। Thank you so much. Thank you so Very much. fortunate to have been part of Purva. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. I'll stop the recording now, and I have recorded it on the cloud. I hope that was right. There was no time to ask you.